بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ایک صرف مشکل کشا اور حاجت روا اور کارساز ہے۔ وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا خالق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے آخری رسول ہیں۔ آپ تمام رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا میرے اللہ، ان پر اور ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کے جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، جسم درد کرتا ہے، اس کے دیکھنے کی وہ پہلے والی کیفیت نہیں رہتی، کھانے کی وہ پہلے والی کیفیت نہیں رہتی، اور جسم میں جو سکون پہلے ہوتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو وہ سکون نہیں رہتا۔ یہ دنیاوی زندگی جب بیمار ہوتا ہے انسان تو یہ جسم پر یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی زہری زندگی، جس سے انسان کا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر روح بھی ڈالی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی بھی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ آپ یہ موازنہ کریں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کا بدن ٹھیک نہیں رہتا، اس میں بخار ہوتا ہے یا اور کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا پورا نظام دنیا میں اس کے جسم کا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، جب اس روح کو اپنی اصل غذا نہیں ملتی، مثلاً وہ روح کیا اس کی غذا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کسی کے ساتھ محبت کرنا اللہ کے واسطے، اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ کے سامنے رات کو سجدہ ریز ہونا، جب یہ تمام عمل یہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا ذہنی جو سکون ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو جس طرح انسانی جسم کا علاج کیا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر لوگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کا عمل ہے وہ درست نہیں رہتے، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ کسی ایسے اللہ کے ولی کے پاس اس کو لے کر جایا جائے، تاکہ اس کے جو روح کا پرابلم ہے وہ اس سے جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں وہ اس سے نکال دیں۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے دنیا میں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، آپ کو روحانی مسئلہ بن چکا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، ڈپریشن بن گیا ہے، تو پھر آپ کو بھی اچھے سے اچھا اللہ کا ولی تلاش کرنا ہوگا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے، وہ آپ کی طبیعت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ایسا رستہ بتائیں گے جس سے آپ کی روح بالکل تر و تازہ اور خوش و خرم ہو جائے گی۔ تو انسان جب پریشان حال ہوتا ہے تو اس قسم کا جب مسئلہ بنتا ہے تو اس میں سب سے ضروری جو ہے وہ ہے صبر۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ سورۃ عصر کا اگر موازنہ کریں، اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 30ویں سپارے کے اندر فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر،
इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात वतवसौ बिलहक़ वतवसौ बिस्सब्र। अल्लाह पाक कसम खाते हैं वक्त असर की कि वल असर इन्नल इंसान। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे वक्त असर की कसम कि ये इंसान जो है वो नुकसान में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वक्त असर की कसम खाई है, वक्त ज़ोर की कसम नहीं खाई, वक्त फजर की कसम नहीं खाई, वक्त मगरब की कसम नहीं खाई, वक्त इशा की जो है वो कसम नहीं खाई, वक्त असर की क्यों खाई है? तो ये इसका जवाब ये है कि जब अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो उस वक़्त ये एक रवायत थी कि लोग सुबह के वक़्त जब अपनी मज़दूरी पर काम काज के लिए घर से निकलते थे तो असर के वक़्त सब लोग दूर दूर से, वो रेतला इलाका था तो वो लोग अपने घोड़ों पर, अपने गधों पर, मुख्तलिफ़ सवारियों पर, कुछ पैदल वो असर के टाइम घर आ जाते थे। वो दूर दूर से नज़र आते थे लोग आते हुए। तो वो वक़्त बहुत अहमियत का हामिल था उस दौर में। तो इसी वजह से अल्लाह पाक ने वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वक्त असर की कसम इसलिए खाई कि उस दौर में उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान नुकसान में है। अल्लाह पाक वक्त असर की कसम भी खाते हैं और अपनी ज़ात की कसम भी। और उसके बाद फरमाते हैं कि ये इंसान जो है ये कसारे में है, घाटे में है। लेकिन अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात वतवसौ बिलहक़ वतवसौ बिस्सब्र। आगे अल्लाह पाक 4 नुक्ते बयान फरमाते हैं, 4 लोगों की बात बताते हैं। फरमाते हैं कि इल्लल्लज़ी, इन लोगड़ी है उसके ऊपर आप कदम रखना है। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पर जिन लोगों ने ईमान लेकर आए हैं, जो लोग अल्लाह पर ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह की वहदानियत को माना है, अल्लाह की तौहीद को माना है, अल्लाह के होने का मुकम्मल ज़हन जो है वो मन गया है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये लोग भी नुकसान में नहीं, पहले नंबर पर। नंबर 2, व आमिलुस्सालिहात, जो नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों का सहारा बनते हैं, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो ये लोग भी खसारे में नहीं हैं। और तीसरी जो आगे वो बनती है सीढ़ी, और आप वो ऐसा करें कि पहला स्टेप और दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप जो बनता है वो है वतवसौ बिलहक़। अब ये है कि जब वो इंसान बोलेगा, सच्ची बात करेगा, अगर 2 बंदों के दरमियान कोई मसला बन गया है, 2 भाइयों के दरमियान या 2 कोई भी इंसान है, उनके आपस में कोई मसाइल पैदा हो गए हैं, तो जब उस आदमी को बुलाया जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दुश्मन है, ये कोई और है, ये हमारा जानने वाला है। वो जब इंसाफ की बात करेगा या कहीं भी वो बोलेगा तो हक और सच की बात करेगा, वो झूठ पर मबनी कोई बात नहीं करेगा। और आखिर में वतवसौ बिस्सब्र, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आखिरी स्टेप है सब्र का। जब इंसान इन पहले 3 स्टेपों से आगे चला जाता है, सबसे पहली जो इबादत है वो आमनू, उससे सेकंड जो इबादत है वो आमिलुस्सालिहात, और तीसरा स्टेप जो है वतवसौ बिलहक़, और सबसे जो बुलंद सीढ़ी और ऊपर वाला स्टेप है वो वतवसौ बिस्सब्र। जो सब्र की सीढ़ी है या स्टेप है वो सबसे बुलंद तरीन है। सब्र जिस इंसान के अंदर आ गया वो समझे कि खुदा की कसम सबसे ऊपर चला गया। जब सब्र आ जाता है तो अल्लाह पाक सब रास्ते आसान कर देते हैं, उनसे पर्दे हटा दिए जाते हैं उस आदमी से, और सारा कुछ अल्लाह पाक उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। जो उसकी रूहानी प्रॉब्लम होती है, जब इंसान सब्र कर लेता है, अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े उस पर खोल देते हैं। सब्र क्या है? हमारे घरों में छोटी सी बात बन जाए तो बेसब्री का
मुजाहरा किया जाता है, थोड़ी सी अल्लाह भूख दे दे तो बेसब्री का मुजाहरा हो जाता है, अगर थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो बेसब्री का मुजाहरा हो जाता है, अगर कोई और मामला किसी ने बात कर दी तो बेसब्री का मुजाहरा हो जाता है, वालिद ने कोई छोटी सी बात कह दी तो बेसब्री का मुजाहरा हो जाता है। जिस बंदे ने सब्र की एक नुक्ते को एक मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त उसके लिए सब बातनी दरवाज़े खोल देते हैं और फिर उसके सामने अल्लाह होता है या फिर वो इंसान होता है। सब्र एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि इन अल्लाह मस्साबिरीन, जो सब्र करने वाला है उसके साथ अल्लाह है। तो आज की जो वीडियो है मैं अपने भाइयों के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ कि मैंने कहा है कि जिस इंसान को कोई भी मुश्किल हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, जितनी भी घबराहट हो, जितनी भी बीमारी हो, जितना भी वो मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, तो वो जो सब्र वाला पैमाना है वो आपने अपने जिस्म के ऊपर लागू रखना है, उसको सीने से लगाना है, उसको चूम कर रखना है, क्योंकि ये सब्र एक ऐसी चीज़ है जो कि कुरान मजीद में खुले लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि इन अल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ उस आदमी के साथ होते हैं जो सब्र करने वाला होता है। तो जब ये मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला के सामने और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद सलाम भेजें और एक एक दफ़ा दरूद सलाम भेजने के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह, ये 11 बार आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी मुसीबत होगी अल्लाह पाक वो ऐसे ख़त्म करेंगे जैसे मक्खन से बाल निकाल के रख दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो अपने दोस्तों के लिए अच्छी साबित होगी और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिलेटिव जो हैं उनमें शेयर करें, अपने बहन भाइयों में शेयर करें, ताकि इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाया जा सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।